સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજના દિવસે આજે આપણે કરીશું કંપની ફાઇનલ એકાઉન્ટ. અને કંપની ફાઇનલ એકાઉન્ટની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ શીખ્યા હતા અને એની ડિટેલ આઇટમ્સ આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ. આજના લેક્ચરની અંદર હવે આપણે બેલેન્સ શીટની વાત કરવાની છે. પણ બેલેન્સ શીટની વાત કરતા પહેલા ધ્યાનથી સમજજો. બેલેન્સ શીટની વાત કરતા પહેલા મારે તમારી જોડેથી પીએનએલ નું કોઈ પણ એક સ્ટુડન્ટ પાસે કોઈ બી એક બહુ જ પરફેક્ટલી પીએનએલ નું સ્ટેટમેન્ટ બોલવાનું છે કે સર પીએનએલ માં પહેલા આ છે, પછી આ છે, પછી આ છે, આના 3 ભાગ, આના 2 ભાગ, આનો 1 ભાગ, આનો 1 ભાગ નહીં, ટોટલ આ થાય. એ બધું એક વખત મસ્ત બોલી જાઓ અને પછી આપણે કંપની ફાઇનલ એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ શીટની ચર્ચા કરીએ. સર હું કહું? યસ વૈદેહી, બોલો બેટા. પીએનએલ માં પહેલા આવશે રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, પછી આવશે અધર ઇન્કમ્સ, પછી ટોટલ ઇન્કમ્સ, પછી ટ્રેડની 3 આવશે, પરચેસ, ચેન્જ ઇન સ્ટોક, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, પછી પીએનએલ ની 4 આવશે, એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સ, ફાઇનાન્સ કોસ્ટ, ડેપ્રિશિએશન એન્ડ એમોરાઇઝેશન અને અધર એક્સપેન્સ. પછી એનું ટોટલ એક્સપેન્સ, પછી એનું મળશે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ, પછી માઇનસ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ અને પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. ઓકે, વેરી ગુડ. એક વસ્તુ રહી ગઈ, પહેલી બે આઈટમ જે બોલી ને બેટા, એ કોની કઈ છે? ફર્સ્ટ રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન એ ટ્રેડની છે અને અધર ઇન્કમ્સ એ પીએનએલ ની છે. વેરી ગુડ. હવે આટલું તમે સમજી ગયા ને છોકરાઓ, તો તમને પીએનએલ નું આખું ફોર્મેટ આવડી ગયું. એની અંદરની ડિટેલ પણ આપણે ચર્ચા કરી છે લાસ્ટ લેક્ચરમાં. રેકોર્ડિંગ્સ તમારી જોડે અવેલેબલ છે ગૂગલ ક્લાસરૂમ ની અંદર. એટલે આટલું તો તમારી જોડે છે જ. આજે બેલેન્સ શીટની વાત કરીશ. અત્યાર સુધીમાં બેલેન્સ શીટમાં જે ભણ્યા છે, વધારે ના કહું તો લાસ્ટની વાત કરીએ. પાર્ટનરશિપ, ફાઇનલ એકાઉન્ટ ઓફ પાર્ટનરશિપ, લાસ્ટ યરની નહીં, હમણાં જ પાર્ટનરશિપ ફાઇનલ એકાઉન્ટ. તો એમાં તમે બેલેન્સ શીટમાં આવું બનાવતા, લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડ. જેમાં અહીંયા કેપિટલ, અને અહીંયા એસેટ્સ. આવું આપણે લખતા હતા. કેપિટલ એન્ડ એસેટ્સ, આવું આપણે લખતા હતા. હવે કંપની ફાઇનલ એકાઉન્ટમાં છે ને, બેલેન્સ શીટમાં શું ચેન્જીસ છે? આ જે પાર્ટ દેખાય છે ને, આ પાર્ટને ઉઠાઈને એ લોકો નીચે લખે અને સ્ટેટમેન્ટ બનાવી દે. પહેલા એ લોકો આ પાર્ટ બનાવે છે, જેનું ટોટલ કરે છે, લખી નાખે છે. પછી આ પાર્ટ એની નીચે બનાવે છે, સળંગ સીધું એનું ટોટલ કરે છે, લખી નાખે છે. આ બંનેનું ટોટલ સેમ હોય એવી રીતે એ બંનેનું ટોટલ સેમ હોય. પણ કંપની છે ને, એટલે અહીંયા થોડુંક નામ ચેન્જ થઈ ગયા છે. જે મેઇન હેડિંગ છે એ બદલાઈ ગયા છે કંપનીના કારણે. એ બે કયા નામ થયા છે એ મારે જાનવી પાસેથી આન્સર જોઈએ છે. આ બેના મેઇન હેડિંગ શું બદલાઈ ગયા છે? શું નામ છે જાનવી? હા સર, જે કેપિટલ ની જગ્યાએ ઇક્વિટી શેર એન્ડ લાયબિલિટી. ઇક્વિટી શેર નહીં હોય. જો તો ટેક્સ્ટ બુકમાં બધા એક કામ કરો, ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર 126 કાઢી લો. બધાને ખબર પડે કે કઈ રીતે નામ લખી રહ્યો છું, કઈ રીતે હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. કારણ કે કરવાનું ટેક્સ્ટ બુકનું જ છે અને એટલું પરફેક્ટલી કરવાનું છે કે આપણને બધું આવડી જાય. હા જાનવી, એક ઇક્વિટી વખત એન્ડ ચેક કરી લો. લાયબિલિટી. ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી. વેરી ગુડ બેટા. ભાઈ એનું મેઇન હેડિંગ છે ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી. અને અહીંયા બેટા અસેટ્સ. એમાં એસેટ્સ છે. એમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી. એમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી. ખાલી અહીંયા નામ બદલાઈ ગયું, ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી, અને અહીંયા નામ આવી ગયું એસેટ્સ. બસ આટલો ડિફરન્સ છે. આ બધા ઇક્વિટી લાયબિલિટી નું ટોટલ કરવામાં આવે છે. આ એની નીચે લખવામાં આવે છે સળંગ, પછી એનું ટોટલ કરવામાં આવે છે. બંને ટોટલ સેમ થાય એટલે આપણે બેલેન્સ શીટ પૂરી. બસ આટલું કરવામાં આવે છે.
કોઈને કઈ ડાઉટ હોય, ખબર ના પડી હોય તો પૂછી શકો છો. ओके ध्वनित. हाँ सर. यहाँ पे मैंने वैसे तो लिखा कलर की दुकान में मिलेगा ना? हाँ सर. यहाँ पे कितने पार्ट्स होते हैं और यहाँ पे कितने पार्ट्स होते हैं मेन, तो बताना है. सर यहाँ पे लेफ्ट में 3 होते हैं, राइट में 2 होते हैं. एक्चुअली अब लेफ्ट राइट नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए ठीक है. यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. हाँ सर. यानी लिखा ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है. 3. और यहाँ पे 2 पार्ट्स, 2. ठीक है. नाम पता है, याद है ये 3 पार्ट्स कौन से हाँ हैं? सर. बोलो बेटा. हाँ. शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड. फर्स्ट पार्ट છોકરાઓ ધ્યાન રાખજો, યાદ રાખજો. શેર હોલ્ડર ફંડ જે ક્યાંથી આવ્યો સમજો. આ ઇક્વિટી છે ને, તમે વિચારો કંપનીમાં શું હોય? ઇક્વિટી શેર્સ. કંપનીમાં શું હોય? ઇક્વિટી શેર. ઇક્વિટી શેર જે પરચેસ કરે એ વ્યક્તિને આપણે કહીએ છીએ, પર્સનને આપણે કહીએ છીએ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર. અને એનું ફંડ શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, એનું નામ છે શેર હોલ્ડર ફંડ. તો શેર હોલ્ડર ફંડ ફર્સ્ટ પાર્ટ, આ ઇક્વિટી નું પતી ગયું. હવે લાયબિલિટી ના 2 પાર્ટ છે. બોલો બેટા. नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज. વેરી ગુડ. નોન કરંટ લાયબિલિટી એન્ડ સેકન્ડ થર્ડ ઇઝ કરંટ લાયબિલિટી. લાયબિલિટી 2 ટાઈપની હોય. એક લાયબિલિટી જેને આપણે કહીએ છીએ નોન કરંટ લાયબિલિટી, અને બીજી લાયબિલિટી જેને આપણે કહીએ છીએ કરંટ લાયબિલિટી. ધ્વનિત, नॉन करंट અને करंट વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? सर उसमें लायबिलिटी साइड वाले लिखते हैं, जो लॉन्ग टर्म हुए ना वो, और उसमें शॉर्ट टर्म. यस, नॉन करंट मींस लॉन्ग टर्म एंड करंट मींस शॉर्ट टर्म. कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? सर आइटम से, जो अंदर आइटम हो. आइटम से तो पता नहीं चलता है. मैंने लोन लिया, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. पता कैसे चलेगा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म? वो नहीं पता सर अब. यहाँ पे 2 आइटम पता है. हाँ. बोलो. नॉन करंट एसेट और करंट एसेट. नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स. स्टूडेंट्स, અહીંયા 2 આઇટમો હતી, ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી. તો ઇક્વિટી એક શેર હોલ્ડર્સ ફંડ અને લાયબિલિટી 2 ટાઈપની, નોન કરંટ એન્ડ કરંટ. સેમ વે એસેટમાં 2 પાર્ટ, નોન કરંટ એસેટ એન્ડ કરંટ એસેટ. નુપુર, ખબર કેવી રીતે પડે નોન કરંટ છે કે કરંટ છે? એસેટ કે લાયબિલિટી, બંનેનો રૂલ તો સેમ જ છે. હે નુપુર, કેવી રીતે ખબર પડે કે નોન કરંટ છે કે કરંટ છે? પ્રેરણા, કેવી રીતે ખબર પડે? अरे चालू कहीं ना पाड़ तो नहीं खबर है तो आगे जाइए. हेलो सर. हाँ प्रेरणा, बोल बेटा. સર નોન કરંટ એટલે સર એમાં ટેન્જીબલ હોય અને ઇનટેન્જીબલ હોય. એવું નહીં, નોન કરંટ છે કે કરંટ છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? હું એમ નથી કહેતો. सर मैं बताऊं? એની અંદરની ડિટેલ પૂછતો જ નથી. હું તો ખબર કેવી રીતે सर પડે? मैं बताऊं? एक मिनट, अब पहले प्रेरणा कुछ बोल रही है, नहीं बोल रही है, पास बोलेगी तो तेरे को बोल दूंगा, चांस दूंगा. प्रेरणा हाँ पास सर कर. पास. हाँ ध्वनित बोल तो. हाँ सर सर. 1 साल से 12 महीने से ऊपर मतलब लॉन्ग टर्म, 12 महीने से अंदर मतलब शॉर्ट टर्म. सिंपल.
एक साल से ज्यादा टाइम के लिए कुछ है तो लॉन्ग टर्म है, एक साल से कम टाइम के लिए है तो शॉर्ट टर्म है, सिंपल है। टाइम पीरियड पे डिपेंड है लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टाइम, 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए अगर कोई लायबिलिटी है जो 12 महीने के बाद पेमेंट करना है उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। सेम वे एसेट की बात है, अगर ऐसी एसेट है जो मैं लॉन्ग टाइम यूज करने वाला हूँ, एक साल से ज्यादा टाइम के लिए मैं यूज करने वाला हूँ, दैट इज नॉन करंट एसेट। एक साल के अंदर अंदर यूज करके खत्म कर देना है यानी हो जाए खत्म पूरा हिसाब किताब, तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे यानी करंट एसेट बोलेंगे। सेम वे करंट लायबिलिटी बोलेंगे। और आगे जो चैप्टर आने वाला है रेशियो, उसके अंदर ये सब का इंपॉर्टेंस है। आपके कोर्स में कुछ निकाल दिया है वो अलग बात है, बाकी ये सबका इंपॉर्टेंस वहां पे है। यही बैलेंस शीट से मैं पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूं वहां पे। तो उसमें से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो बहुत काम का है। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी तो करंट रेशियो बन जाता है वहां पे, तो ये इसका यूज होगा वहां पे। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करो तो लिक्विड रेशियो बन जाएगा। और अभी अभी जो सिखाया था स्टार्टिंग में डिफिकल्टी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करो तो वर्किंग कैपिटल बनता है, तो वर्किंग कैपिटल नीचे चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फाइंड करने के लिए। तो ये दोनों का यूज तो हम लोग कोर्स में है जो रेशियो में काम आएगा। उसके अलावा सबका कहीं ना कहीं यूज है जो बाकी काम का नहीं है, तो चिंता नहीं है। ठीक है, तो करंट यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है, शॉर्ट टर्म यानी 12 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म यानी 12 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए। खत्म हो गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, दूसरी एक अच्छी बात मैंने बताई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल देता हूँ। सबके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट। यानी ये शेयर होल्डर फंड में 2 है, मेन हेडिंग, उसके अंदर डिटेल की तो बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आपको पढ़ने का टाइम दूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो आप लोग करोगे। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ इसके अंदर 2 पार्ट्स है जो हम लोग समझेंगे, 3 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, यहाँ पे 5 और 6 पार्ट्स है। तो ये याद रखने के लिए इजीली समझ में आए इसलिए ऐसा किया है। 2 3 4 5 6। कोई लोग ऐसा भी याद रखते हैं सर 2 3 4 4 6, लेकिन 4 5 6 क्या थोड़ा इजी रहता है, इसलिए मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ। 5 कैलकुलेशन करवाऊंगा, देखना होगा, 2 चीजें होगी, डोंट वरी। और आपको पेज नंबर 126 पे पूरा फॉर्मेट बना के दिया है, जिसकी मैं अभी ये एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूं ना वो उसी का है, नया कुछ नहीं। तो पहले तो बैलेंस शीट जो पहले पुराना था उसमें नया क्या आया, कुछ नहीं, खाली इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एसेट हो गया जो था ही। यहाँ पे 3 पार्ट्स कर दिए, यहाँ पे 2 पार्ट्स कर दिए, हर पार्ट के अंदर 2 3 4 5 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, सबको होगा ही, 100% क्लियर होगा। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके नाम भी लिख दिए, इक्विटी यानी हम लोग बोलते हैं इक्विटी, शेयर कैपिटल, तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का जो पैसा है वो शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटी में 2, लॉन्ग और शॉर्ट, तो लॉन्ग को बोलेंगे नॉन करंट, शॉर्ट को बोलेंगे करंट। तो पहले नॉन करंट फिर करंट। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, एसेट में भी ऐसा होगा। किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, पूछ सकते हो। आज नहीं पूछोगे फिर चांस नहीं मिलेगा, इसके बाद ये बेसिक का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगा ये देख लो। ओके, तो यहां पे हमारा काम हो गया। अब मुझे आंसर चाहिए विशाल, इसके अंदर 2 पॉइंट्स कौन से हैं, मेन हेडिंग बताओ। शेयर होल्डर फंड्स में नहीं, सर एक तो शेयर कैपिटल, फिर से बोल दो। सर एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा सर दूसरा याद नहीं है। देख पहले तो सर हाँ बोल बेटा, बीजू बोले हाँ बोल जा। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। સ્ટુડન્ટ્સ બધાને મેં એક આઈડિયા થી યાદ કરાવડાવ્યું આ બધી વસ્તુ, એક જોરદાર આઈડિયા વિચારીને
પછી બધું યાદ કરાવડાવ્યું છે મેં તમને લોકોને. અને આઈડિયા શું છે સાંભળો. અચ્છા, કોઈને યાદ છે? કોઈ બી જે લોકો બોલી ચૂક્યા છે એમાંથી પણ આન્સર આપશે તો ચાલશે. એક નાનકડી સ્ટોરી થી કે પહેલા આવું થાય, પછી આવું થાય, પછી આવું થાય. હા, ઓકે, હું કહી દઉં છું. યાદ રાખજો, તકલીફ ના થાય. રાઈટ છોકરાઓ? કારણ કે નેક્સ્ટ ટાઈમ ચાન્સ નહીં મળે. ફરીથી કહું છું, હું નહીં કહું. તમે નહીં કહો તો એક જ વસ્તુ કહીશ કે રેકોર્ડિંગ જોઈ લો. ધ્યાનથી સમજો. કોઈ પણ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો પહેલા પોતાના પૈસા લગાવવા પડે. ધેટ ઇઝ ઓનર્સ ફંડ. આ શેર હોલ્ડર ફંડ નું બીજું નામ ઓનર ફંડ પણ છે. ઓનર પોતે પૈસા લાવે છે. ધેટ ઇઝ શેર કેપિટલ. શેર કેપિટલ, શેર પરચેસ કરે છે, કેપિટલ આપે છે. ધેટ ઇઝ શેર કેપિટલ. ઓનર્સ ફંડ, શેર કેપિટલ. પહેલું એ ઓનર ફંડ નો ભાગ છે. હવે પૈસા લગાવો એટલે પૈસા તમે બિઝનેસમાં લગાવીને કમાઓ. બિઝનેસમાંથી અર્નિંગ કરો. અર્નિંગ કરીને ભેગું કરો, જેને સરપ્લસ કહેવાય. રિઝર્વ્સ, તમે રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો, સરપ્લસ ક્રિએટ કરો છો. તો રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ ઇઝ યોર ઓન પ્રોપર્ટી, ઓન એસેટ. તમારા પોતાના છે. ઓનર લઈ જશે, ઓનરનું જ છે. રિઝર્વ ઇઝ નોટ અ લાયબિલિટી. સમજો, કમ્પલસરી નથી મારે રિઝર્વના પે કરવા પડશે. રિઝર્વ આપણા માટે સિક્યોરિટી છે. રિઝર્વ એ મારા માટે સિક્યોરિટી છે કે ફ્યુચરમાં ક્યારેક પૈસાની જરૂર પડશે કે કોઈક એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ, સિચ્યુએશન આવી ગઈ, એને ટેકલ કરવા માટે રિઝર્વ રાખેલી. અને સરપ્લસ એટલે ભેગા થયેલા પૈસા, પ્રોફિટ. તે બધું કોનું છે? ઓનરનું છે. માટે આને ઓનર ફંડ પણ કહે છે. અને અહીંયા ઓનરનું નામ, અહીંયા ઓનર કોણ છે? શેર હોલ્ડર ઓનર છે. એટલા માટે શેર હોલ્ડર્સ ફંડ એવું નામ પડ્યું છે. એટલા માટે આના બે નામ આવ્યા છે. પહેલા પોતાના પૈસા લાયા, ધેટ ઇઝ શેર કેપિટલ. પછી બિઝનેસમાંથી કમાઈને રિઝર્વ ક્રિએટ કરી, ફંડ ભેગું કર્યું, સરપ્લસીસ થયા, ધેટ ઇઝ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. એ પણ ઓનર રૂપ છે. તો બે વસ્તુ, share capital and reserve and surplus both are of owners. Owner means shareholders, so it is a shareholders fund. એટલા માટે આના બે પાર્ટ્સ પડે. કોને ખબર ના પડી? પહેલા પોતાના પૈસા લાયા, પૈસા લગાવીને કમાયા, રિઝર્વ અને સરપ્લસ ક્રિએટ થઈ, ધેટ ઇઝ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ ઓનર્સ ફંડ, શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. તો આ બંને વસ્તુ શેર હોલ્ડરની છે. ચલો, આ એક સ્ટોરીની મેં સ્ટાર્ટિંગ કરી દીધું. કદાચ આગળ યાદ આવે તો મને કહેજો કે હા સર તમે આ સ્ટોરી આ રીતે સ્ટાર્ટ કરી હતી, પછી આ ત્રણ સમજાયા. આ સ્ટોરીના રિલેટેડ આ ત્રણ કયા છે? કોણ સમજાવશે? સ્ટોરી રિલેટેડ છે કોઈ? सर मैं बताऊं? हाँ बोल बेटा. सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. सर फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ पैसे बाहर से चाहिए होंगे, लोन वगैरह. सही है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, गलत नहीं है. सर अदर लॉन्ग, मैंने ऐसा सिखाया था, शॉर्ट में सुन ले मेरी बात को, एकदम शॉर्ट में सुन ले. अदर मेरी बात को शॉर्ट में सुन ले. पहले हम लोग अपने पैसे लगाते हैं, कमाते हैं, फिर उसको फिर से री इन्वेस्टमेंट करते हैं रिजर्व सरप्लस क्रिएट करके, और पैसों की अगर रिक्वायरमेंट है तो मार्केट में से बोरो करते हैं. दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग. खत्म, इतना ही है. मार्केट से दो टाइप से बोरो कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखूंगा. 12 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए बोरो किया तो शॉर्ट टर्म लिखूंगा. जो करंट में जाता है, लॉन्ग टर्म यहां आता है, नीचे करंट में जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग. तो हम लोग पैसे मार्केट से उठाते हैं. मेरे पैसे खत्म हो गए, मैंने जो कमाया सब लगा दिया, घर से लाया लगा दिया, और पैसे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा. कौन सी नई बात है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म को ऊपर लिखते हैं, शॉर्ट टर्म को नीचे लिखते हैं, बस इतना ही फर्क है. हाँ बेटा, और आगे नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड वन यहाँ पे क्या आता है?
अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यस, लायबिलिटी। सपोज जैसे हम दूसरे में भी वो नहीं समझाना है, बस इतना। ये लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी एक तो बोरोइंग किया वो लायबिलिटी है, और उसके अलावा अदर लायबिलिटी भी हो सकता है जो बोरोइंग नहीं है, उसके अलावा लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यहां पे बात आती है लायबिलिटी की। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दो टाइप की चीजें होती है, एक रिजर्व एंड प्रोविजन। प्रोविजन मेरा लायबिलिटी है, देखो रिजर्व है ना वो लायबिलिटी नहीं है, वो ऑनर्स का होता है। लेकिन जो प्रोविजन होता है, जो 11th स्टैंडर्ड में आप डिफरेंस पढ़े हो, रिजर्व एंड प्रोविजन। तो रिजर्व जो है ना वो हमारी सेफ्टी है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, अगर फ्यूचर में काम आया तो हम यूज कर लेंगे और अच्छी तरीके से अपना बिजनेस चला पाएंगे, दैट इज रिजर्व। और प्रोविजन यानी देना ही है, वो फ्यूचर में पेमेंट होगा ही होगा, 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो पेमेंट होने वाला है। तो हर साल मैं थोड़े थोड़े पैसे साइड में करते जाऊंगा, और जब मेरे पास एक साल लास्ट में बचा, एक ही साल लास्ट में बचेगा, तो वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। ये जो प्रोविजन है वो लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि 5 सालों से इकट्ठे करते आ रहा हूं, पैसे जमा करते जा रहा हूं, अब लास्ट ईयर बाकी है तो वो साल मुझे वो पेमेंट करना है, इसका मतलब उस साल के लिए वो शॉर्ट टर्म हो गया, तो वो चला जाएगा नीचे शॉर्ट टर्म में। तो देखो, एक पैसे उठाए, बोरोइंग किया, दूसरा लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन एक होता है रिजर्व, दूसरा होता है प्रोविजन। तो रिजर्व लायबिलिटी नहीं है इसलिए यहाँ पे है, वो ऑनर्स का है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो यहाँ पे है, वो 11th स्टैंडर्ड का है, यहाँ का नहीं है, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे रहा, डिटेल में करेंगे, जिसके लिए ये मैंने रिवीजन शुरू किया है। एक्चुअली इसकी डिटेल करने के लिए रिवीजन शुरू किया है, लेकिन बेसिक से करवा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो सेम चीज है, ये दोनों नीचे भी है, ये लॉन्ग टर्म है तो नीचे शॉर्ट टर्म है। विशाल तू ही बोल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यहाँ पे क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो स्टूडेंट्स बात सिंपल है, अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये तीनों चीजें नीचे है, यहाँ पे बीच में जगह खाली रखी है, एक चीज लिखनी है इसलिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पैसा उठाया, घर से लाया वो तो इतना ही था, जो बिजनेस में लगा के कमाया वो भी यहाँ पे इतना ही है। अब लायबिलिटीज, उसमें से पेमेंट करना जो बाकी है, क्या क्या पेमेंट है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बाहर से पैसा लाया वो लॉन्ग टर्म के लिए लाए तो यहाँ पे, शॉर्ट टर्म के लिए लाए तो यहाँ पे। फिर एक और बात याद रखनी, ये जो लॉन्ग टर्म है ना वो कभी ना कभी शॉर्ट टर्म होने वाला है। 5 साल के बाद पेमेंट करना है अभी, लेकिन 4 साल खत्म होने के बाद वो 1 साल के बाद पेमेंट करना है, यानी वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो जो चीजें यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगी, क्यों? लॉन्ग टर्म कभी शॉर्ट होने वाला है ही। तो ये तीनों चीजें नीचे लिखी, एक चीज खाली नहीं है, क्या नाम है? ट्रेड पेबल्स। जिसका नाम है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स यानी जो ट्रेडिंग करते हैं जिसके साथ, उसको पेमेंट करना बाकी है। सर एक ही तो है, क्रेडिटर्स।
वो उनको पेमेंट करना बाकी है। अब क्रेडिटर्स को दो टाइप का पेमेंट करना बाकी होता है, एक तो क्रेडिटर्स जो नॉर्मल और दूसरा बिल्स पेबल। आपने क्रेडिटर को प्रॉमिस किया है 1 महीने बाद मैंने पेमेंट करना है और उसको बिल एक्सेप्ट करके दिया है, जो 11th स्टैंडर्ड में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल आता था, तो वो क्रेडिटर का ही है। तो दोनों चीजें पेमेंट किसको होगा? क्रेडिटर्स को। तो ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों चीजें ट्रेड पेबल की है। नथिंग न्यू, एक ही चीज यहां पे नहीं, खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहां पे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी खत्म, इसका टोटल करो, एक चीज खत्म। ये एसेट को नीचे लिखना है, फिर एसेट का टोटल करो, वो भी सेम ही आएगा, उसमें कुछ नया नहीं आएगा। तो मेरा जो स्टोरी है यहां तक का फिर से सिर्फ इतना ही है, सुन लो ध्यान से। ये स्टोरी में सिर्फ इतना ही है, पहले ओनर कैपिटल लाता है, शेयर होल्डर्स पैसे देते हैं, शेयर कैपिटल, बिजनेस में से कमाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, और पैसों की जरूरत है बोरो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरो करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरो करते हैं। लायबिलिटी भी, अदर लायबिलिटी भी होता है, ऐसा नहीं है जो बोरोइंग किया वही लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी भी होती है। तो लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर शॉर्ट करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटी। फिर जैसे यहाँ पे रिजर्व क्रिएट होता है वैसे प्रोविजन होता है कि फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रोविजन आज से करते जाओ। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक चीज यहाँ पे नहीं आई, ट्रेड पेबल, बस ये एक ही तो नया है, बाकी क्या नया है, खत्म हो गया, इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहां तक किसको डाउट है, समझ में नहीं आया? यहां तक किसको कुछ समझ में नहीं आया? सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, एक्सप्लेन करो इसमें से। इसके अंदर की डिटेल तो बाद में जानेंगे, लेकिन यहां तक तो दिमाग में होना ही चाहिए आप लोगों को। जो कोर्स में है ना सम जो आपको दिए हुए हैं, सीधे नाम ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, नाम से पता चल जाता है कौन सी चीज कहाँ आएगी, एकदम इजी है। हम लोग तो ऐसा करने वाले हैं, अगर घुमा फिरा के अंदर अंदर से भी पूछे ना तो भी आए, वो मेहनत करनी बाकी है आगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करूंगा बस। एसेट भी नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ये लेक्चर में एसेट सिखाने वाला नहीं हूं, ये लेक्चर में सिर्फ लायबिलिटी। लेकिन नेक्स्ट टाइम लायबिलिटी एकदम डिटेल में याद होना चाहिए। हाँ सर सब पता है, आपको पढ़ के आना है लायबिलिटी में से। क्या पढ़ के आना है लायबिलिटी में? तो पेज नंबर 127 है, उसमें देखो नीचे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ऐसा सब डिटेल में दिया हुआ है आगे 127 128 पेजेस पे, 129 तक लायबिलिटी है। वो एक बार देख के समझ के आना है जो इसके अंदर की डिटेल्स है, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे मैं ओवर करता हूँ 100%। आज और कुछ नया पढ़ाने वाला नहीं।